हाँ जी, अब दिख रही है। हाँ, okay. So in the last session we are discussing about the bones of the upper limb, and we are discuss about the three bones, that is the clavicle, scapula, and the humerus. So in this session we have a bone related with the forearm. They are radius and ulna, and the muscles related with an upper limb. Especially in this lecture we are just uh, uh, include the muscles regarding the scapular region, arm, and the front, and the muscles, and then applied aspects of the muscles related with the upper limb. Just I have mentioned over here one aspect, one applied aspect related. So this is first radius. Radius is the lateral bone of a forearm. It's homologous with the tibia. Basically, when we discuss about the radius, it's easy to remember that it's towards the thumb. Basically, in both upper limb and lower limb, it's towards the thumb. Now if now we can find that radius at the upper segment or the in the upper limb, it's placed laterally, whereas in the lower limb it is placed medially. ओके, ये बेसिक डिफरेंस है जो दो बोन उन्होंने कंपेयर किए हैं, रेडियस और टिबिया. रेडियस अपर लिम में है जो लैटरली जाता है टुवर्ड्स द थंब, एंड टिबिया ये लोअर लिम में टुवर्ड्स द मेडियली है. बेसिकली जब बॉडी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे मैंने छोटी सी फिगर बताई है, दे आर जस्ट स्टार्ट विथ अ सिंगल बर्ड, and in there they having a central axis present over there, and having two another axis related with an pre-axial border and a post-axial border. So when the there is a progression or the development of an limbs, the lower limbs just turn inward in inward direction, and upper limbs turn toward the outward direction. So though they are formed by a same structure, but they place in a different region and in a different way. So the radius of the lateral bone of an forearm is homologous with the tibia. ये बहुत बार कंफ्यूज होता है कि एक मीडियल साइड का एक लैटरल साइड का है, तो ये डेवलपमेंटल रीजन है बेसिकली कि कौन से साइड का बोन वो कौन सा होना चाहिए. सो दिस इज द रेडियस. बेसिकली फोर आर्म का बोन है, बहुत छोटा है, थंब से हम पाल्पेट करते हैं. तो यहाँ पे लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन के कारण इसमें तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं एज यूजुअल, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड. अपर एंड में यहाँ पे हेड है, नेक है, और यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब्रोसिटी है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल. द हेड इट इज डिक शेप, आप यहाँ पे देख पाओगे ये छोटा सा हेड है, डिक शेप होता है, कवर्ड विद द हाइलाइन कार्टिलेज एट द सुपेरियर कॉनकेव सरफेस. यहाँ पे जो सुपेरियर सरफेस है दैट इज द कॉनकेव वन. यहाँ पे अच्छे से दिखेगा, ये हेड है, ये ट्यूब्रोसिटी है, और ये दोनों के बीच में नेक है. तो यहाँ पे हेड हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड होता है, और अपर सेगमेंट ऑफ एन हेड it's having a concavity so that it can just articulate with the capitulum of the humerus. ये humerus के वक्त हमने देखा था कि they are having two structures, one is related with the capitulum and second one is related with the trachea. So it have a concavity so that there is a convexity of capitulum is just fixed in that portion to form an elbow joint. Then a neck, it's enclosed by a narrow lower margin of an annular ligament. Annular ligament, as per the name, it's just surrounding the head of an radius up to the portion related with an ulna, so that most of the time here the attachment with the ulna. At this position the annular ligament is just attached with this position. So जब हम देखते कि जब छोटे बच्चे होते तो उनका हम हाथ पुल नहीं करना चाहिए, उसका मेन रीजन ये होता है कि ये जो लिगामेंट होती है यहाँ से कभी भी रेडियस डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकती है, डाउनवर्ड मूवमेंट में डिसलोकेट हो सकता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोला जाता है कि बच्चों के हाथ पुल मत कीजिए. ऐसे इसमें एल्बो का डिसलोकेशन ड्यू टू दिस एन्युलर लिगामेंट फिक्स अटैच नहीं होती, उस कारण हो सकता है. Then tuberosity,
is just below the medial part of the neck, and it has rough posterior part and smooth anterior part. Is just for the attachment, and it's the portion related with the upper end. Here in the diagram you can just see this is the radial tuberosity just below the neck, and this is the upper segment that is related with the head. This is the concavity or articular area related with the ulna. This is the neck, and the head of an this head of an radius is just articulate with the capitulum. Then the next portion, that is the middle one, it's the shaft, and it has three borders and three surfaces. So first one, the anterior border, posterior border, and medial or the interosseous border. Now this is the bone placed at the forearm, just for the sake of side determination. This is the lower end, it is the flattened one as compared with the upper end. Then at the anterior aspect, the flat lower end is the smooth, and the posterior aspect they're having a four groove. Okay, so this is often left side bone. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड का होने के कारण ये मेडियली आर्टिकुलेट होता है अल्ना के साथ. तो इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. ये जो बॉर्डर है ये दोनों के बीच में, मींस इसकी मेडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर ऑफ अल्ना, ये दोनों बॉर्डर शार्प होते हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट्स, क्योंकि इसके बीच में कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी मसल्स ट्रांसफर नहीं होता, कोई भी स्ट्रक्चर, वहां पे फिक्स लिगामेंट होता है जस्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ सुपेनेशन एंड प्रोनेशन. तो यहाँ पे दोनों बॉर्डर, सबसे पहले जो प्रोमिनेंट बॉर्डर है वो आइडेंटिफाई हो सकती है बाय द शार्प मार्जिन, and in the radius that margin is by at its medial aspect. Then anterior border, its extent for anterior margin of radial tuberosity. This is the radial tuberosity, and as we earlier we just identified the side determination and how it is just going to place. तो रेडियल ट्यूबरोसिटी से एंटीरियर मार्जिन आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है. तो ये एंटीरियर मार्जिन है, तो रेडियल ट्यूबरोसिटी से एंटीरियर मार्जिन को जो बॉर्डर जाती है दैट इज द एंटीरियर बॉर्डर. और यहाँ पे जो अपर बॉर्डर होती है वो स्टार्टिंग में ऑब्लिकली होती है, फिर वो स्ट्रेट आ जाती है. तो ये जो ऑब्लिक बॉर्डर होती है दैट इज कॉल्ड एज एन एंटीरियर ऑब्लिक लाइन. मींस पहले तो ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट हुआ एंटीरियर रीजन तक, एंटीरियरली रन हो रही है इसलिए उसको एंटीरियर बॉर्डर कहा. और एंटीरियरली रन होने से पहले वो थोड़ा सा ऑब्लिक आती है, मींस क्रॉस होती है, क्रॉस होने के बाद एंटीरियरली नीचे जाती है. तो जो ऑब्लिक लाइन है दैट इज द एंटीरियर ऑब्लिक लाइन. देन पोस्टीरियर बॉर्डर इज जस्ट मिरर इमेज ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर having the same posterior oblique line and just goes downward as a posterior margin. So this is the three borders. Now the surfaces they are related with this bone is the anterior surface, posterior surface and the lateral surface. ये बॉर्डर कंफर्म होने के बाद हम उसी की पोजीशन में सरफेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिस इज द शार्प बॉर्डर, दिस इज द मेडियल वन, ये एंटीरियर बॉर्डर होगी. ये दोनों के बीच में जो सरफेस है दैट इज द एंटीरियर सरफेस. देन जो सरफेस एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में आता है दैट इज द लैटरल सरफेस, क्योंकि ये बॉडी के लैटरली है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में जो पोर्शन आएगा ये कंप्लीट दैट इज द लैटरल सरफेस. एंड द पोर्शन बिटवीन द पोस्टीरियर border and the interosseous border, it is the posterior surface. So three surfaces, three borders are there. Then important structure related with the lower end, it's having a 5 surfaces. मीन्स बाकी जगह पे आपको बाकी जब हम लोअर एंड या अपर एंड डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे अलग से सर्फेसेस नहीं दिए, पर यहाँ पे अलग से सर्फेसेस है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ टेंडॉन्स रहती है जब जो ब्रिज जॉइंट के या मेटाकार्पल या कार्पल पे इंसर्ट होती है, जो यही से पास होते हैं पोस्टेरियरली. एंटेरियरली यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रहता, ये स्मूथ रहता है. जहाँ पे हम मोस्टली रेडियल आर्टरी पाल्पेट करते हैं, हम कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो जो हम नाड़ी परीक्षा करते हैं या पल्स देखते हैं तो इट इज रिलेटेड विद द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस. वहां पे रेडियल आर्टरी अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर रहा तो नॉर्मली वहीं पे प्रेजेंट होती है. अगर कहीं फ्रैक्चर हो गया होगा और कुछ एनाटॉमिकल वेरिएशंस होंगे तो ऐसे इसमें ही
डिफरेंस होता है, बट ये बहुत कम होता है। जैसे मेरे हाथ में सेम फ्रैक्चर है, तो अभी ऑपरेशन के वक्त शायद उन्होंने टेंडन और ये अलग अलग थोड़े से डिस्प्लेस हो गए, तो ये मोस्टली मेरे इसमें पाल्पेट नहीं होती जहाँ पे होनी चाहिए। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि एनाटॉमिकल चेंजेस अगर कुछ हुए तो हमें ये नहीं मिलेंगी, लेकिन वो रहती उधर ही है। ठीक है, तो नॉर्मली इट्स जस्ट पाल्पेट बिलो द थंब, रेडियल आर्टरी, जो नाड़ी परीक्षा वगैरह हमने देखी है बहुत बार, ये हम खुद भी अभी जैसे फिलहाल में जो कोरोना का था तो पल्स ऑक्सीमीटर से हम चेक करते थे, नहीं तो हम मैन्युअली चेक कर सकते हैं। तो ये जो पोजीशन होती है जब हम थंब पाल्पेट करते हैं, यहाँ पे एंटीरियर सरफेस होता है लोअर एंड का। तो फर्स्ट वन द एंटीरियर सरफेस, देन पोस्टीरियर सरफेस. It is the identification point regarding the site determination. This is the posterior surface having a 4 grooves present over there for the passing of just extensor tendon present over the back of the forearm, and it having a tubercle present over there called as a dorsal tubercle or the tubercle of Lister. Basically this tubercle acts as a pulley for the tendon which just goes to the thumb. मीन्स यहाँ से एक एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस की मसल नीचे आती है, वो एट द मिडल प्रेजेंट रहती है, एट द मिडल। देन यहाँ तक आने के बाद मीन्स डॉर्सल ट्यूबरकल के पास आने के बाद वो टर्न होती है टुवर्ड्स द थंब। तो वो जो टर्निंग होती है इट्स ड्यू टू दिस ट्यूबरकल। जैसे हमने कभी कुएं का पानी वगैरह निकाला होगा, तो कुएं में जो पुली होती है मीन्स स्ट्रेट वहां तक रोक जाती है, फिर डाउनवर्ड जाती है। तो सेम फंक्शनिंग यहाँ पे वो डॉर्सल ट्यूबरकल का है जो पोस्टीरियर सरफेस में होता है। जस्ट यहाँ पे टेंडन जो होती है ये थंब की तरफ मूव होती है और ये फिक्सली अटैच होती है। तो बहुत बार डिस्प्लेसमेंट में या डिसलोकेशन में अगर ये स्लिप हो गया डॉर्सल ट्यूबरकल से, तो जो एक्सटेंशन मूवमेंट होती है थंब की वो भी हैम्पर हो सकती है। देन medial surface, as it's present laterally to medial to this bone there is the ulna, so they are having a relation हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही हो। डॉक्टर भुपटकर कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ सर, हाँ सर। का मतलब पूछ रहा था मैं, ट्यूबरोसिटी। सॉरी, सॉरी सर। ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरोसिटी जो है हाँ रेडियल सर, ट्यूबरोसिटी है और उल्ना ट्यूबरोसिटी है। तो ट्यूबरोसिटी का मतलब इज इट सर इट्स हॉलो जस्ट पोर्शन, एलिवेशन प्रेजेंट ओवर द प्लेन सरफेस। एलिवेशन? एलिवेशन सर मीन्स ओके प्लेन ओके। सरफेस होता है, तो वहां पे जैसे हमने पहले ही दिन देखा था, सर्कल होता है, ट्यूबरोसिटी होती है, इलिवेशन होते हैं, तो वो उनके सरफेस एरिया के हिसाब से उनको एक ही स्ट्रक्चर को अलग अलग नाम दिए हैं। तो ट्यूबरोसिटी ये बड़ा सरफेस एरिया होता है जो प्लेन सरफेस में उभर कर आता है। तो वो सिर्फ अटैचमेंट के लिए होता है। एक जगह पे वो पोस्टीरियरली रफ है और एंटीरियरली स्मूथ है, तो वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। प्लेन सरफेस में अगर अटैचमेंट रहा तो वो मसल्स थोड़ी सी डिस्प्लेस हो सकती है इस कारण। तो इट्स जस्ट द टर्मिनोलॉजी ट्यूबरोसिटी। मतलब tuberosity is in a way some kind of outgrowth over the surface, ऐसा कह सकते हैं अपन? यस सर, यस सर, यस। So something emerging from a plane surface, जैसे कि अगर हमारे मॉल हो जाता है तो उसको क्या एक तरह से ट्यूबरोसिटी का एक फॉर्म है, मतलब नहीं नहीं, एक्चुअली ट्यूबरोसिटी इज द एलिवेशन ऑफ द प्लेन सरफेस। मोल itself it is another disease related with नहीं नहीं, muscular disorder. हाँ Yeah, नहीं नहीं, वो तो बात सही है। जस्ट फ्रॉम अ फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू जो या उसका वो है, जो उस तरह प्लेन से सरफेस है। हाँ उसके ऊपर कुछ आउटग्रोथ हो, उसको शायद ट्यूबरोसिटी कहते हैं ना। हाँ सर, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेंगी ये जी ये देखिए, ये प्लेन सरफेस है रेडियस का, यहाँ पे नेक है, और इसके बाद यहाँ पे एलिवेशन है, और उसके बाद फिर से प्लेन सरफेस आता है। अगर आप इसको कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पे सीधा और यहाँ पे स्ट्रेट है, ये दोनों साइज कंपेयर हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो बाहर निकला है एज कंपेयर विद दीज एंड्स। तो दिस इज द ट्यूबरोसिटी।
तो सेम स्ट्रक्चर आपको लोअर एंड में भी दिखेंगे। ये लोअर एंड हो गया, ठीक है। तो ये लोअर एंड में जैसा ये एंटीरियर एंड है, ये स्मूथ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है। और पोस्टेरियरली जब आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रूज है, मीन्स यहाँ पे 2-3 जगह पे रिजेस होते हैं। ग्रूज मीन्स एक जैसा ये फिंगर्स है, ठीक है, उसके बीच में गैप्स है फॉर द पासिंग ऑफ टेंडन। मीन्स ये जो टेंडन होती है यहाँ से पास होती है तो यहाँ पे वो फिक्सली अटैच हो जाती है, इस कारण वहां पे ग्रूज है जो पास हो रही है। अगेन जब हम मूवमेंट करती है व्रिस्ट की, तो ये टेंडन वहां पे मूव होती है, तो ये मूवमेंट जितनी होंगी उस हिसाब से वो टेंडन वहां पे फ्रिक्शन देंगी। वो फ्रिक्शन के कारण भी एक ग्रूज वहां पे प्रेजेंट हो जाती है। मींस एट द स्टार्ट माइट बी देयर इज द प्लेन सरफेस, बट ड्यू टू दिस मूवमेंट यहाँ पे 100% मूवमेंट के कारण फ्रिक्शन होती है, और जो फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से उसकी डेप्थ रहेगी। अलग एक ट्यूबरकल आपको यहाँ पे मिलेगा, ये सेंटर वाला, मींस बाकी जगह पे जो ग्रू है पर एक ट्यूबरकल है। ट्यूबरकल एंड ट्यूबरोसिटी दे आर द सेम वन, अगेन जस्ट डिफरेंस ऑफ एन साइज। Tubercle means again there is an elevation but it's a small size. Tuberosity it's having a large size. तो यहाँ पे जो ट्यूबरकल है वहां पे उसका काम एक ही है कि सीधे यहाँ से एक टेंडन आई जिसको थंब की तरफ जाना था, बट इट्स प्लेस एट द सेंटर एस्पेक्ट, देन जस्ट मूव्स टुवर्ड्स द लैटरल एंड्स टुवर्ड द थंब। तो यहाँ पे जो ट्यूबरकल है दे एक्ट्स एज अ पुली फॉर दिस टेंडन। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन वहां पे सिर्फ वो पुली के जैसा काम करता है। देन two surfaces medial, it's for the ulnar notch. Now the notch is a some kind of depression at the plane surface, means वहां पे ये दूसरा बोन अटैच हो रहा है for the attachment of the fixed attachment of this joint. They are one having a convexity and another have a concavity, so that concavity of the surface is called as the notch. So this is the ulnar notch for the attachment of the ulna. Then lateral process, it's called as a styloid process. Again it's a part of an elevation. तो ये और बड़ा होता है, पॉइंटेड है, इसलिए इसको स्टाइलॉइड प्रोसेस करके अलग से नाम दिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेडियल बॉर्डर हो गई एज कंपेयर्ड विद दैट इज द लैटरल बॉर्डर, और ये प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो दैट प्रोलॉन्ग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड इट्स रिलेटेड विद द लैटरल सरफेस। नाउ the inferior one having a two impressions, that is first one a triangular and second one is a quadrangular. The triangular area is related with the scaphoid bone, that is the carpal bone forming the wrist joint, and a medial quadrangular area having a relation or a contact with the lunate bone, which is again forming the wrist joint. So this is the 5 surfaces of the radius. Okay, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शायद क्लियर दिखेंगे। ये देखिए ये हेड का अपर पोर्शन हो गया जो कैपिचुलम के साथ अटैच हो रहा है, दिस इज द ट्रोक्लिया, यहाँ पे हेड अगेन एंड दिस इज द कैपिचुलम। ये प्रोसेस ट्रोक्लियर नॉच अल्ना से रिलेटेड है, तो वो हम अल्ना के सेक्शन में देखेंगे। देन सरफेसेस हो गए, ये भी हो गया। देन अटैचमेंट, that is the first one, bicep brachii is inserted into the rough area posterior radial tuberosity। जो हमने बोला कि रेडियल ट्यूबरोसिटी जो चीज है, एलिवेशन है, वहां पे सिर्फ अटैचमेंट, बेसिक जो भी स्ट्रक्चर्स बोन पे प्रेजेंट होते हैं, ग्रूज हो गए, ट्यूबरकल हो गए, उसमें कोई ना कोई अटैचमेंट है, इसलिए वो बेसिकली तैयार हुए हैं। नहीं तो पूरे बोन प्लेन रहते हैं, क्योंकि जो अटैच होते हैं उसके इंप्रेशंस होते हैं, उसके मूवमेंट के इंप्रेशंस होते हैं। तो सेम जो भी स्ट्रक्चर बोन पे हमें दिखेगा वो कोई ना कोई पर्पस से वहां पे आया है। तो सेम यहाँ पे जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है वहां पे बाइसेप ब्रैकाई का इंसर्शन है, अपर आर्म की मसल है जो इंसर्ट होती है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। देन सुपिनेटर इज इंसर्टेड into the upper part of an lateral surface. Then flexor pollicis longus has an origin. Again ये बहुत सारे नए नाम्स हैं जो हम फिर से आगे विद डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट अलग अलग रीजन में। सो यहाँ पे एज अ पार्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन से मसल कहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे मेंशन है। तो एक ही ओरिजिन फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का, बेसिकली फ्लेक्सर इट इज रिलेटेड विथ एन एक्शन ऑफ फ्लेक्शन, देन पॉलिसिस इट इज रिलेटेड विथ एन थंब, and longus as compared with another muscle having a long tendon,
तो ये हर एक मसल के नाम भी उसके रीजन या उसके फंक्शन वाइज है. सेम वन द बाइसेप ब्रैका. बाइसेप सेप्स मींस हेड, बाय टू हेड having the region over the brachium means bicep brachia. Brachium region में होने वाली दो हेड की मसल, so it is called as an bicep brachii. Supinator, it's having the relation in a supination, the movement which just having a supination, supinator. Then pronator quadratus means having a function of pronation. It's just look like a quadrangular manner. Then pronator teres, again pronator is related with then pronation. Then brachioradialis means it start with a brachium up to the radius. So start with the brachium, so brachio and inserted in the radius, so it is radialis. Then flexor digitorum superficialis, again it having origin related with an radius. So as per the name, flexor having a function, that is the flexion. Then digitorium means just going towards the digits, they are the 4 digits, because थंब की तरफ जाने वाली जो है वो अलग से पॉलिसिस से डिनोट की गई है, बट डिजिटोरम यानी डिजिट्स की तरफ जाने वाली जो है वो डिजिटोरम से बोला है. तो फ्लेक्सर जो करती है दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. सुपरफिशियलिस इसलिए बोला है क्योंकि वो सुपरफिशियल होती है. डिजिट, चारों डिजिट के तरफ जाने वाली एक और मसल होती है जो डीप में प्रेजेंट होती है, वो हम आगे और देखेंगे. देन abductor pollicis longus, again same pollicis towards the thumb, longus long tendon होता है. abductor means थंब का वो abduction करता है. extensor pollicis brevis, जैसे यहाँ पे हमने पहली मसल पढ़ी थी extensor pollicis longus, तो सेम मसल है, एक्सटेंशन कर रही है. pollicis means थंब का एक्सटेंशन कर रही है. brevis means उसका टेंडन छोटा है एज कंपेयर्ड विद longus. तो यहाँ पे जो मसल्स के नाम है वो कौन से रीजन में गए हैं, क्या फंक्शन दे रहे हैं, उसी हिसाब से उन्होंने नाम दिए हैं. देन द लिगामेंट्स, क्वाड्रेट लिगामेंट्स, अगेन इट्स अ क्वाड्रेंगुलर. ऑब्लिक लिगामेंट्स, बेसिकली ऑब्लिक लिगामेंट अपर साइड में होती है, रेडियल ट्यूबरोसिटी अपर साइड में मींस मेडियल बॉर्डर ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी, और वो अल्ना तक जाती है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है. ये डायग्राम में दिखेंगी शायद, यहाँ पे वो होती है और यहाँ से अल्ना तक जाती है, तो ये ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है. सो दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्लिक लिगामेंट. देन आर्टिकुलर कैप्सूल, यहाँ पे आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, टू फॉर्म द ब्रिज जॉइंट, एंड यहाँ पे आर्टिकुलर कैप्सूल होता है अपर एंड में टू फॉर्म द जस्ट एनसर्कल द एल्बो जॉइंट. देन एक्सटेंसर रेटिनाकुलम अटैच्ड टू द लोअर पार्ट एंड इंट्राओशियस मेम्ब्रेन, इट्स रिलेटेड विथ एन lateral border of the radius. और extensor retinaculum means यहाँ पे जब पोर्शन होता है व्रिस्ट जॉइंट का, उसके ऊपर एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन रेटिनाकुलम. ठीक है, तो यहाँ पे दो रेटिनाकुलम होते हैं, एक एक्सटेंसर रेटिनाकुलम और सॉरी हियर देयर इज अ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड एट द बैक हियर इज एन एक्सटेंसर रेटिनाकुलम. तो ये रेटिनाकुलम जो होता है सिर्फ अ पार्टीशन होता है जिससे एक तो वो जो टेंडॉन्स है वो उसी की जगह पे होते हैं, उसके साथ वो अटैच होते हैं, उसकी सीक्वेंस होती है. मोस्टली वो सीक्वेंस भी बॉडी में चेंज नहीं होता, इसलिए हमने जब लास्ट टाइम बोला था कि यहाँ पे आप टेंडन पाल्पेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये जो होता है ये पैल्मैनिस लॉन्गिस का टेंडन होता है, जहाँ अगर आपने थंब अंदर बंद किया और उसको एग्जैक्टली प्रेस करके अगर ये किया तो यहाँ पे आपको पैल्मैनिस लॉन्गिस का टेंडन दिखेगा. ठीक है, जब हम डिसेक्शन भी करते हैं तो हमें अगर पॉलिसिस का टेंडन पाल्पेट कर रहा है तो हम सिर्फ उसको फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को पुल करते हैं, तो थंब की मूवमेंट होती है डेड बॉडी में. ठीक है, हम बेसिकली बॉडी में नहीं देख सकते, लेकिन डेड बॉडी में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वही टेक्निक है कि मसल को पुल करके देखिए, अगर थंब की मूवमेंट हो रही है तो समझना कि वो पॉलिसिस की तरफ जा रही है. क्योंकि बहुत बार ये स्ट्रक्चर्स हम एट द एंड तक डिसेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें नहीं पता चलता कि वो कहाँ जा रहा है. और बेसिकली बॉडी जब हम डिसेक्ट करते हैं तो ये होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर दिखने के बाद उसको हम नाम नहीं दे सकते जब तक हमें ये नहीं समझता कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है. क्योंकि पूरे मसल्स की बेली सेम होती है, पूरे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, वहीं पे टेंडन होते हैं. तो एक तो वही टेक्निक से उसे याद करना पड़ता है, अगर लॉन्गस है तो उसका टेंडन लॉन्ग रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर वैसे के वैसे बॉडी में दिखते हैं. तो दिस इज द
ligaments or the structures related with the radius. Bicep brachii is having the insertion, then supinator at the lateral aspect. Then this is the anterior oblique line, जो anterior border मैंने बोली थी कि tuberosity से anteriorly पहले obliquely run होती है फिर anteriorly चली जाती है, तो this is the anterior oblique line where is the flexor digitorum superficialis is originated. Then pronator teres, then a big muscle having a flexor pollicis longus, the same muscles present over that the in inferior aspect, that is the pronator quadratus. तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये quadrangular region में है, यहाँ पे अच्छे से दिखेंगी, ये quadrangular मसल है, यहाँ से यहाँ तक है, अल्ना तक, तो ये अगर पूरा ज्वाइन कर लिया तो दिस इज द quadrangular in shape, ठीक है। ये बॉडी पे एक्जैक्टली quadrangular दिखती है, जैसे डायग्राम में नहीं दिखती, पर जब हम बॉडी डिसेक्ट करते हैं तो एक्जैक्टली quadrangular दिखती है। इसके नीचे से भी एक नर्व जाती है, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इंट्रोशियस नर्व होती है, जो मीडियन नर्व की ब्रांच होती है, तो ये quadrangular इन शेप दिखता है इसलिए, और प्रोनेशन में हेल्प होता है, दैट इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस। सेम स्ट्रक्चर थे, अपर एंड शाफ्ट, लोअर एंड, अपर एंड सिर्फ हेड था, नेक था, ट्यूबरोसिटी थी, लोअर एंड 5 surfaces थे, anterior, posterior, medial, lateral and the inferior, and 3 border, 3 surface at the middle. Then next, that is the ulna. It's the another bone related with the forearm. अब इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू द अदर बोन, बिकॉज इसमें सबसे बड़ा नॉच है, दैट इज कॉल्ड एज एन ट्रोक्लियर नॉच। जो हमने यहाँ पे ट्रोक्लिया देखा था ह्यूमरस में, तो वहां पे अटैच होने के लिए वो जो पोर्शन होता है जहाँ पे कॉन्केविटी आती है, दैट इज कॉल्ड एज एन ट्रोक्लियर नॉच। तो दिस इज द ट्रोक्लियर नॉच। देन हैविंग 2 प्रोसेसेस एट द अपर सेगमेंट, दैट इज द फर्स्ट वन ओलेक्रोनॉन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। जब हमने स्कैपुला देखा था वहां पे भी 3 प्रोसेस देखी थी, फर्स्ट वन acromion process, spine and the coracoid process. Coracoid means it's related with a beak of an crow, so that is called as coracoid. Then having acromion process and the spinous process related with the scapula, and here they are having again 3 processes basically, 2 at the upper segment, it's called as an olecranon, this is coronoid, and this is called as a styloid process at the lower aspect. एक स्टॉलेट प्रोसेस हमने रेडियस पे भी देखी जो लैटरली जाती है, ठीक है, लैटरल सरफेस में होती है, तो सेम वन इज प्रेजेंट हुआ हियर जो यहाँ पे मीडियली जाती है। इसलिए अगर आपने आपका व्रिस्ट पाल्पेट करके देखा तो यहाँ पे जो पाल्पेशन होता है, जो प्रोमिनेंस आपको बोन लगेगा, दैट इज रिलेटेड विद स्टैलॉइड प्रोसेस। तो ये हमने जब लैंडमार्क भी देखे थे तब भी मैंने बोला था कि यहाँ पे पोस्टीरियरली आप सिर्फ पाल्पेट करके देखिए इसको, ये पोर्शन को, यहाँ पे आपको प्रोमिनेंस दिखेगा जहाँ पे डायरेक्टली बोन आपके हाथ को लगेगा, दैट इज रिलेटेड विद द स्टैलॉइड प्रोसेस, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये अगर पोर्शन कहीं पे लग गया, ये भी फ्रैक्चर हो सकता है, स्टैलॉइड प्रोसेस भी, ठीक है, और छोटी सी प्रोसेस होती है इसलिए इसमें रिपेयर नहीं होता, ये हम ऑपरेट नहीं कर सकते, सिर्फ प्लास्टर करके इसको छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। और ये कभी बहुत बार फ्रैक्चर होता है क्योंकि ये सबसे सुपरफिशियल है, ठीक है। तो दिस इज द स्टैलॉइड प्रोसेस। Then ulna, again it's related with the medial side of an forearm and it's homologous with the lower limb with the fibula, okay, it is another bone related with the leg that is at placed at the lateral aspect. अब fibula मोस्ट ऑफ द टाइम इसका बाकी कोई रिलेशन नहीं आता, जॉइंट में ये फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, पर जो बल्क आपको लेग रीजन में दिखेगा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, जो काल्फ हम जिसे बोलते हैं, जो डायमेंशन वो और जो स्टेबिलिटी होती है वो फिबुला के कारण होती है इन द लोअर लिम्ब। इन द अल्ना it's taking part in the wrist joint also by the connecting ligaments. In the elbow it is directly attached, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था बरसा के रिलेशन में, जब हम कभी स्टूडेंट लाइफ में आप देखोगे तो हम ऐसा बैठते हैं टेबल पे, ठीक है, तो जो नीचे का पोर्शन अटैच होता टच होता है बेड को, जिसे हम हिंदी में कोहनी वगैरह जो बोलते हैं, तो दैट पोर्शन इज रिलेटेड विद दिस पोर्शन, ठीक है। ये जो सुपीरियर सरफेस होता है ओलेक्रोनॉन प्रोसेस का, उसका उससे अटैच होता है। अगर ये लोअर बॉर्डर हो गया तो ये हम ऐसे बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ये कंटिन्यू अगर ऐसे बैठे रहे तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, दैट इज कॉल्ड बर्साइटिस, ठीक है। तो दिस इज द ओलेक्रोनॉन प्रोसेस। नाउ जस्ट गो वन बाय वन।
This is the upper end. Upper end presents first one olecranon and coronoid process and trochlear and the radial notches. तो ये trochlear notch होगी और फिर से जहाँ पे रेडियस अटैच होती है, नॉच मीन्स डिप्रेशन, यहाँ पे रेडियल नॉच भी आएगी, तो ये ट्रोक्लियर नॉच और ये रेडियल नॉच, ठीक है। ओलेक्रोनॉन प्रोसेस इज अपवर्ड फॉर्मिंग द फॉर्म द शाफ्ट, ये अपवर्डली डायरेक्टेड होती है। इट हैज सुपेरियर, दिस इज द सुपेरियर, देन एंटेरियर, देन पोस्टेरियर, मेडियल एंड द लैटरल सरफेस। तो 5 सरफेसेस होते हैं, सुपेरियर, एंटेरियर, मेडियल, लैटरल और पोस्टेरियर, ठीक है। तो एंटेरियर सरफेस इट्स आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस, ट्रोक्लियर नॉच के साथ वो आर्टिकुलेट होता है। पोस्टीरियर सरफेस हैविंग अ ट्रायंगुलर सबक्यूटेनियस एरिया व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्किन बाय द बर्सा, जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे बर्सा होता है जो स्किन से सेपरेट होता है। तो इंफीरियरली इट जस्ट कंटिन्यूअस विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना, जो अल्ना के साथ आगे हम देखेंगे। देन मेडियल सरफेस इट्स कंटिन्यूअस इंफीरियरली विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट। तो ये 5 सरफेसेस हो गए अल्ना ओलेक्रोनॉन प्रोसेस के। यहाँ पे और अच्छे से डायग्राम में आपको दिखेंगे। दिस इज द ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस, हियर there is a radial notch, this is the trochlear notch, this is the ulnar tuberosity again, and this tuberosity is present in the ulna, so it is called a ulnar tuberosity। जब हमने एक स्ट्रक्चर शायद ह्यूमरस पे देखा है, जैसे ह्यूमरस में पोस्टीरियर एस्पेक्ट में या पोस्टीरियर सरफेस में एक ग्रूव होता है फॉर द पासिंग ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। 2 हेड होते हैं ट्राइसेप के, ट्राइसेप के बेसिकली 3 हेड होते हैं, लॉन्ग, मीडियल और लैटरल। मीडियल और लैटरल के बीच से वो नर्व पास होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन रेडियल ग्रूव। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जैसे रेडियल, हमने ये पढ़ा कि अल्नर नॉच, रेडियल नॉच, तो ये जो पोर्शन होता है कि दूसरे बोन का है लेकिन दूसरे बोन पे इसके नाम आते हैं, तो कभी कभी ये कंफ्यूज होता है। जैसे रेडियल नॉच हम बाय नेम गए तो हम ये स्ट्राइक हो सकता है, इट माइट बी प्रेजेंट एट द रेडियल वन, बट इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द अल्ना फॉर द अटैचमेंट ऑफ द रेडियस। But tuberosity, basically the tuberosity, when you are asking about the tuberosity, it is related with the same bone, means radial tuberosity बोली तो 100% रेडियस में रहेंगी, क्योंकि वो tuberosity और एलिवेशन रेडियस से रिलेटेड है। बट अगर नॉच अगर आए तो ये नॉच मोस्टली रिलेटेड विद द अटैचमेंट विद द अनदर बोन रहते हैं। तो रेडियल नॉच इज प्रेजेंट इन द अल्ना, अल्नर नॉच इट इज प्रेजेंट इन द रेडियस, ठीक है। तो दिस इज द अपर एंड, यहाँ पे और अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। दिस इज द अपर एंड ऑफ अल्ना, ये लोअर एंड है रेडियस और अल्ना का। दिस इज द रेडियस, ट्रायंगुलर और क्वाड्रेंगुलर एरिया, एंड दिस इज द हेड ऑफ एन अल्ना। बेसिकली अल्ना एक ऐसा बोन है जिसका हेड ये पोर्शन उन्होंने नीचे दिया है, क्योंकि बेसिकली ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है, पर हम इसको अगर देखो ध्यान से देखेंगे तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर, ये बोन में जो है ये राउंडेड स्ट्रक्चर नीचे आया है। सो इस कारण शायद उन्होंने हेड जो नॉमेनक्लेचर दिया होगा रेडियस को, वो लोअर सेगमेंट में दिया होगा। नहीं तो अभी तक जो बोन्स देखे उसका राउंडेड सेगमेंट अपर साइड में है एज कंपेयर्ड विद द लोअर। द ओनली लॉन्ग बोन हैविंग द डिफरेंट फीचर्स, दैट्स इट हैज एन डिफरेंट स्ट्रक्चर एट द अपर सेगमेंट एंड राउंडेड सेगमेंट एट द लोअर वन। तो यहाँ पे हेड ये जो पोर्शन आया है ये लोअर वन में आया है। अब बेसिकली ये अपर पोर्शन मीन्स ये टुवर्ड्स द एल्बो है, एंड द लोअर पोर्शन मीन्स इट्स टुवर्ड्स द ब्रिज जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड नहीं है अपर सेगमेंट में रेडी अल्ना के, ठीक है। देन नेक्स्ट कोरोनॉइड प्रोसेस, ये जो आउटग्रोथ है दैट इज द कोरोनॉइड प्रोसेस, प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट जस्ट बिलो द olecranon and has 4 surfaces present over there: superior surface, anterior surface, then lateral and the medial. Superior surface forming the trochlear notch, again anterior surface having a triangular rough area for the attachment of the muscle, just we will discuss in later section, that is the anconeus one. Then upper part of the lateral surface marked by the radial notch for the attachment of the radius, and lower part of the lateral surface form a depression for the accommodation of the radial tuberosity. जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी है रेडियस की, अब ये रेडियस यहाँ पे अटैच हुआ है, तो ये अटैच होते वक्त ये ट्यूबरोसिटी यहाँ पे डायरेक्टली अटैच ना हो, इसलिए यहाँ पे एक और थोड़ा सा कॉन्केविटी या डिप्रेशन आई है, जस्ट ट्यूबरोसिटी को एनक्लोज करने के लिए, ताकि उसका फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द 5 surfaces related with the radius, upper end of the coronoid process, means coronoid process. Then another structure, that is trochlear notch.
Now in the description we can just see that it is formed by the anterior surface of the olecranon process and superior surface of the coronet process. Then radial notch, it's articulate with the head of the radius. Then a shaft, again it's just resemble with the radius, having three borders and three surfaces, but just replace one surface with another one. Means यहाँ पे हमने जब रेडियस देखा था तो रेडियस के मीडियल बॉर्डर शार्प थी फॉर द अटैचमेंट ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. यहाँ पे हम जब देखेंगे तो इसकी अपोजिट बॉर्डर रहती है. तो ये अटैचमेंट के लिए जब ये बोन यहाँ पे अटैच होता है तो दोनों साइड में शार्प बॉर्डर होती है, बट डिफरेंस ये है कि ये बोन मेडियली है तो ये लैटरल साइड में शार्प बॉर्डर देगा रिलेटेड विद द रेडियस, एंड दैट इज कॉल्ड एज एन इंट्रोशियस बॉर्डर. देन एंटेरियर बॉर्डर, इट्स टुवर्ड्स द एंटेरियर एस्पेक्ट. तो ये थिक होती है, राउंडेड होती है, अल्नर ट्यूबरोसिटी से वो निकलती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द हेड. देन पोस्टीरियर बॉर्डर, ये सबक्यूट होती है, ये पाल्पेट कर सकते हैं हम. सबक्यूट मींस जस्ट बिलो द क्यूटिस, दैट इज द स्किन. इट बिगिंस अप टू द at the apex of the triangular or subacute area just back of the olecranon process. वहां से स्टार्ट हो रहा है up to the styloid process at the end. मींस यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है. अब ये बहुत पुराने बोन से तो थोड़ा सा डिजेनरेट हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्रोमिनेंस नहीं दिख रहा. ये डायग्राम शायद मेरे पास होंगी, ये लोअर एंड, नहीं तो ये डायग्राम सेम डायग्राम जैसे यहाँ पे एलिवेशन होता है. दिस इज द हेड एंड दिस इज द styloid process. दिस इज द हेड एंड दिस इज द styloid process. So this is the borders. Then surfaces the same, anterior surface, medial surface and the posterior surface. Radius में हमने lateral surface देखा था जो anterior और posterior के बीच में था. यहाँ पे same anterior और posterior border के बीच में सिर्फ medial surface है. बाकी के surfaces और borders same है as they are discussed in the radius, just replaced by the surfaces. Lateral surface present on the radius and medial surface is related with the ulna. बेसिकली ये सरफेस और बॉर्डर जब हम अटैचमेंट देखते हैं उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट आती है. देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज द लोअर एंड. द लोअर एंड इज मेड अप ऑफ हेड एंड styloid प्रोसेस. ये हेलो 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 हाँ जी. हेलो हेलो हेलो
कॉल आला तर नेट चालू होतं. कनेक्ट हेलो हेलो. हेलो. सर आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. हाँ, डॉक्टर अमोल की आवाज सुनाई नहीं दे रही है. दैट इज राइट. His screen is frozen. वो कनेक्टिविटी इश्यूज हैं. कनेक्टिविटी इश्यू है। और सर उन्होंने वो जो पीपीटी है वो मेल पे भेजी है, जी. तो पता नहीं आप लोग मेल पे देख पा रहे हैं या नहीं। मैं फोन पे कनेक्ट हूँ और लैपटॉप पे मैं उनका पीपीटी देख रहा हूँ। जी. अच्छा. हाँ, तो अगर वो ओके. स्क्रीन शेयरिंग नहीं करते हैं और हम लोग देख पाते हैं उनका पीपीटी अपने अपने डिवाइसेस पे, तो फिर शायद पता नहीं। हाँ, ये दैट्स वर्थ कंसिडरिंग. पर स्क्रीन शेयरिंग से मेरे ख्याल में बैंडविड्थ में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ना सर? मुझे पता नहीं उसके बारे में, मुझे ऐसा हाँ, लग रहा था कि ट्राई करके देख सकते हैं वैसे। ट्राई करके देख सकते हैं. करेक्ट. हाँ करेक्ट. मैं बात करता हूँ उनसे एक बार. हाँ सर, मैंने उनसे बात की ये बारे में. तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअली पीपीटी तो है हमारे पास, लेकिन बोलते वक्त जो है कई चीजों को बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है. कोई फीचर दिखाने के लिए, कोई फोटो दिखाने के लिए. तो जैसे जैसे वो मिलते हैं उनको पीपीटी साथ में चाहिए होती है. तो इस वजह से वो, बट ही ऑल्सो सेज कि हल्का सा फर्क जरूर पड़ता है. अपन पीपीटी साथ में शेयर करते हैं तो बैंडविड्थ ज्यादा लगती है, दैट इज ट्रू. पर वो उसके बिना जो है फिर उनका फ्लो नहीं बन पाएगा. एक्चुअली जो मुझे दिखाना रहेगा पीछे करना आप वो पड़ता है। नहीं कर पाओगे. जी. हाँ, आगे पीछे नहीं करना पड़ता है। ठीक है. बट सर अगर आपके घर पे और कोई डिवाइस है जो वाईफाई यूज कर रहा है, देन यू कैन स्टॉप द वाईफाई लाइक द फोन और समथिंग लाइक दैट.
किसके लिए actually? I'm talking about Dr. Amol. If there are some other devices at home also, Correct. so like maybe the phone can be, the Wi-Fi can be stopped on the phone for these 1.5 hour. हाँ, कुछ ऐसा। Yeah. वो अपने वैसे फोन का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो जी। ओके हाँ, सर, आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके हाँ, okay. So this is the lower end head and stolid process. I have just discussed about this again. Then the last portion related to radius, that is the attachment, ulna, that is the attachment of the ulna. So the muscle, that is the tricep, then brachialis, then supinator, and the ulnar head of flexor digitorum superficialis. Means first one the tricep, it's at the posterior aspect of the arm. It's by a three head, or so it's called as in tricep brachii, present in the brachium. Then brachialis, it's related with the brachium only. It's the muscle related with the flexor compartment, which is the anterior one. Then supinator, it's at the posterior aspect, सबसे आखिर में होती है supination के लिए. Then ulnar head related with the flexor digitorum superficialis. ये हमने रेडियस पे भी देखा था ओरिजिन इसका. तो यहाँ पे दो हेड मीन्स दो जगह से ओरिजिन है, अल्नर ओरिजिन है और एक रेडियल ओरिजिन है. तो अल्नर हेड इट्स रिलेटेड विथ एन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. देन नेक्स्ट अटैचमेंट अगेन प्रोनेटर टेरेस, ये भी हमने फिगर में देखी थी कि प्रोनेशन सुपेनेशन के लिए होती है. देन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये लास्ट टाइम हमने नहीं देखी, जो मैंने बोला था कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है टुवर्ड्स 4 डिजिट्स जाती है. तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस वो फैली हुई है, स्प्रेड मसल होती है, तो वो अटैच होती है अल्ना पे, अराइज होती है. देन डिजिटोरम मींस डिजिट की तरफ उसका इंसर्शन होता है. तो ये अपर 3/4 एंटीरियर 4 वो कहाँ पे प्रेजेंट है वो उन्होंने दिया है. सबसे बड़ी मसल है मिडल डिप कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म की, जो वहां पे प्रेजेंट होती है. देन अ प्रोनेटर क्वाड्रेटस टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द ऑब्लिक रीच ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस. ठीक है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मींस प्रोनेशन, और प्रोनेशन सुपरेशन में आती है प्रोनेटर क्वाड्रेटस. ये मैं थोड़ी देर पहले ही दिखाई, जो अल्ना पे रेडियस पे स्टार्ट हो रही है और अल्ना पे खत्म होती है. देन अ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मींस यहाँ पे और दो नाम अलग से है. फ्लेक्सर रिलेटेड विद द फ्लेक्शन, कार्पी रिलेटेड विद द कार्पल, एंड अल्नारिस मींस स्टार्ट विद द अल्नर साइड. तो ये मीडियल साइड में होती है, अप टू द कार्पल बोन तक वो जाती है. देन एक्सटेंसर कार्पल कार्पी अल्नारिस, तो नाम से ही पता चलता है सेम अलग मसल है, सिर्फ उसका फंक्शनिंग डिफरेंट है. मींस एक फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस है, एक एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस है. तो एक्सटेंसर जो एक्सटेंशन कर रहे हैं एल्बो जॉइंट को, दैट इज द एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस. अगेन उसका ओरिजिन है एंकोनियस, इट्स जस्ट इंसर्टेड इन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑल्डिकोरॉन प्रोसा. तो बेसिकली ये जो मसल है एंकोनियस, इट्स ग्रीक में इसका वर्ड मीनिंग होता है कि वो फैन शेप है. बेसिकली फैन शेप इन द सेंस, जो हमने चाइनीज पंखे देखे थे कि उसको अटैच होता है एट द वन साइड और दूसरे साइड में वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता, ब्रॉड ये होता है. ठीक है, तो उससे वो अटैच होता है, तो दैट इज फैन शेप, दैट इज एंकोनियस. देन abductor pollicis longer, extensor pollicis longus, and the extensor pollicis indicis. indicis ये अगेन नई मसल आप अभी तक हमारे इसमें आई, तो ये इंडेक्स फिंगर तक जाती है, तो सो इट्स कॉल्ड एज एन एक्सटेंसर indicis. तो दिस इज
all about the muscles present over the ulna. Again ये diagrams है. Flexor digitorum superficialis, brachialis, supinator, flexor digitorum profundus और pronator quadratus. ये रेडियस के जैसी ही है, सेम अटैच. मोस्ट ऑफ द मसल्स जो होती है रेडियस अल्ना में सेम होती है, क्योंकि पास में नहीं प्रेजेंट है वो दोनों बोन, और वहीं से वो नीचे डिजिटरम के तरफ जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट the radius and the ulna, means the bones present over the forearm. Then these are the ligaments. Most of the ligaments हमने देखिए. Interosseous membrane is just present in between the medial border of the radius to the lateral border of the ulna. Then oblique cord is just above the radial tuberosity and goes obliquely towards the rough area present over the anterior aspect of the coronoid process. Capsular ligament again related with a capsule, forming the capsule joint of the capsule, that is the radius and the ulna. Then annular ligament, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, वही एनुलर लिगामेंट जो मैंने बताई थी कि अटैच होता है रेडियस के हेड में. रेडियस पुल हो सकता है, तो वो दोनों जगह पे अटैचमेंट होती है, रेडियस के राउंडेड हेड में अप टू द रेडियल नॉच, जहाँ पे अपर साइड में है अल्ना के, यहाँ पे वो राउंडेड सेगमेंट में अटैच. देन अल्नर कोलैटरल लिगामेंट एंड आर्टिकुलेटेड डिस्क. तो अल्नर कोलैटरल लिगामेंट इज रिलेटेड विद द ब्रेस जॉइंट. डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता ब्रेस जॉइंट के साथ. जो हमने देखा कि रेडियस में दो बोन होते हैं, स्कैफोल्ड एंड लूनेट, जो अटैच होते हैं कार्पल के साथ, स्कैफोल्ड और लूनेट के साथ. बट अल्ना का जो लोअर एंड है या हेड है, ये कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया है कि जो डायरेक्टली कार्पल के साथ अटैच होता है. हाँ, ये पार्टिसिपेट करता है थ्रू द लिगामेंट्स. जो उसके आजू बाजू में लिगामेंट्स है वो उसके साथ कनेक्टेड रहता है विद द ब्रेस जॉइंट. देन आर्टिकुलेटर डिस्क, यहाँ पे बेसिकली जो हेड है वहाँ पे एक डिस्क होती है जो अटैच होती है रेडियो अल्नर जॉइंट, प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द रेडियो अल्नर जॉइंट. तो ये अगेन जो दोनों जॉइंट के बीच का कॉम्प्रेशन या प्रेशर होता है वो मेंटेन करने का काम करता है. देन लार्जर एरिया कॉल्ड एज elongated area, that is the styloid process. Then the next portion and the important one, that is the muscles. जो अभी तक हमने मसल्स के नाम देखे हैं वही मसल्स हम रिपीट कर रहे हैं as their function, origin and the action. ठीक है, कि कौन कौन से मसल अपर लिम्ब में है, क्योंकि ये सभी नए नाम है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज होते हैं कि जब हम बोन से रिलेटेड पढ़ते हैं कि हम अभी हमने ये पढ़ा है कि बाइसेप ब्रैका का इंसर्शन हमने देखा कि रेडियस ट्यूबरस, और इसका ओरिजिन हमने स्कैपुला पे देखा है. तो ये हमें याद नहीं रहता बहुत बार से कहाँ तक जा रही है, क्योंकि बाइसेप ब्रैका एज पर द नेम गए तो ब्रैकन से पता कर सकते हैं, लेकिन इसका रिलेशन स्कैपुला के साथ भी है, ये कभी कभी भूल जाते हैं. तो इसलिए कलेक्टिवली इसको फिर से कलेक्ट किया है कि कहाँ से निकल रही है कहाँ तक जा रही है, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा कि कौन से बोन में आपको अटैचमेंट दिखेंगी, पर पर्टिकुलरली मसल हमने नहीं दिखे. तो हमने अब ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि कौन सी मसल कहाँ से निकल रही है और कहाँ तक जा रही है. क्योंकि जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम योगा करते हैं, जैसे कोई भी आसन हो गया, पर्वतासन वगैरह, ये जो आसन है भुजंगासन है या सिंपल पश्चिमोत्तानासन वगैरह जो है, इसमें जिसमें बैक मसल भी इन्वॉल्व होती है, पर्वतासन जिसमें हम मूवमेंट करते हैं अपर साइड में, मीन्स ये जो मूवमेंट होती है, ये जो मूवमेंट है ये ड्यू टू द स्कैपुलर मूवमेंट है. तो स्कैपुला में जब मूवमेंट आती है बेसिकली, तो इट्स ड्यू टू दिस फोर मसल्स: subscapularis, supraspinatus, infraspinatus and teres minor. Now just remember subscapularis, ये हमने कब देखी थी, जब स्कैपुला के दो सरफेसेस देखे थे, एंटेरियर वन एंड द डोर्सल वन. तो एंटेरियरली एक कॉन्केविटी थी जहाँ पे सबस्क्यूपुलरिस रहती थी. सुप्रास्पाइनेटस पोस्टीरियर मींस डोर्सल एस्पेक्ट में बीच में स्पाइन था, स्पाइन के ऊपर सुप्रास्पाइनेटस थी, स्पाइन के नीचे इंफ्रास्पाइनेटस थी. देन टेरेस माइनर अगेन ये इनर साइड में थी, लैटरल बॉर्डर पे जो इंसर्ट होती थी. तो बेसिकली ये चारों को रोटेटर कफ बोला गया है. जैसे बहुत बार हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमने हैमस्ट्रिंग्स मसल सुने होंगे जो थाई से रिलेटेड होते हैं. बहुत बार क्रिकेटर जो खेलते रहते हैं तो क्रैम्प्स आते हैं, तो हैमस्ट्रिंग्स में टियर वगैरह होता है. तो सेम मसल होती है एट द अपर एरिया रिलेटेड कॉल्ड एज एन रोटेटर कफ. इसमें जो कोई मूवमेंट हम हेड के ऊपर करते हैं हाथों की, ठीक है, तो ये जो कोई भी मूवमेंट है ये कफ से रिलेटेड है. अब ये कफ जो है ये चार मसल से फॉर्म हो रहा है, ठीक है. तो बेसिकली इन चारों का काम ये है कि जो हेड ग्लिनोइड कैविटी में फिक्स है ह्यूमरस का, उसको डिस्प्लेस ना करे.
ठीक है, मीन्स आप उसको अबडक्ट करोगे, अबडक्शन करोगे, एडक्शन करोगे, सुपिनेशन, प्रोनेशन, सॉरी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन करोगे, तो ऐसे वक्त वो मूव ना हो पाए। ये पूरा काम ये 4 मेन मसल है, दैट इज द सबस्कैपुलरिस, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसी का टियर होता है जब शोल्डर जॉइंट की एक्सेसिव एक्सरसाइज हम करते हैं। तो बेसिकली क्रिकेट में भी जो बॉलर्स होते हैं उनमें ये एक्सेसिव यूज होता है। जेन टेनिस प्लेयर जो होते हैं उसमें इसका यूज एक्सेसिव होता है, क्योंकि जैसे वो ऊपर से शॉट मारते हैं, मीन्स लॉन्ग लॉन्ग बैडमिंटन भी बोल सकते हैं, जो ऊपर से खेलते हैं, तो ये इसमें ये मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे कंडीशन में ये मसल्स हैम्पर हो सकती है, तो ये पता होनी चाहिए कि ये मसल कहाँ से जा रही है, कहाँ पे निकल रही है। देन टेरेस मेजर, लैटिसिमस डॉर्सी, कोरैकोब्रैकियलिस, दिस ऑल मसल्स रिलेटेड विद द और ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्कैपुला। ये हमने स्कैपुला के वक्त डिटेल देखा था कि वो एग्जैक्टली कहाँ से जा रही है। देन insertions, that is the rhomboidus major minor, trapezius, it's the muscle of the back, pectoralis minor, that is the muscle just below the pectoralis major, then serratus ventralis, that is ventral side, means serratus anterior, levator scapulae just have at the medial border at the upper segment, that is the levator scapulae, it just levate or elevate करती है scapula को, that is the levator scapulae. Then these are the just given in the tabular form from where they are just originate and where they are just inserted. The first one, supraspinatus. As per the name, supraspinatus means it is just above the spine of the scapula, middle to third, और तो upper impression of the greater tubercle. के वक्त दो ट्यूबरकल बताए और उसके ग्रेटर ट्यूबरकुलर सर्कस, ठीक है, तो वो ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 इंसर्शन मैंने बताए थे, दैट इज एसआईटी, दैट इज सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर। ये तीनों मसल्स जो है एसआईटी, इनके तीनों के इंसर्शन ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है। तो इंफ्रास्पाइनेटस स्पाइन के नीचे से स्टार्ट हुई, टेरेस माइनर जस्ट स्टार्ट विद द डोर्सल सरफेस ऑफ द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, लैटरल बॉर्डर ऑफ के स्कैपुला के नीचे के साइड में वो स्टार्ट होती है। A lower impression related with the humerus, that is the greater tubercle of the humerus. Then subscapularis, it's the medial 2/3 of the subscapular fossa, जो anterior aspect है स्कैपुला का, जहाँ पे कॉन्केविटी होती है, that is also called as the subscapular fossa. ये स्कैपुला के वक्त हमने देखा था, तो वो इनर साइड की मसल है और ये लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पे इंसर्ट होती है। तो ये चारों मसल स्टार्ट विद द स्कैपुला और चारों का इंसर्शन जो है इट्स रिलेटेड विद द ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। देन टेरेस मेजर एक मसल है, वो भी सेम जहाँ पे टेरेस माइनर होती है उसके नीचे से ही ये मसल है, और ये बेसिपिटल ग्रूव के मीडियल लिप को, मीडियल मींस जो दो ट्यूबरकल के बीच में एक ग्रूव था, एक डिप्रेशन था, उसके ऊपर वो अटैच हुई, तो दैट इज रिलेटेड विद द मीडियल साइड, दैट इज टेरेस मेजर। तो यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो ग्रूव पे 3 मसल होती है, एक मीडियल साइड में दैट इज टेरेस मेजर, लैटरल लिप पे पेक्टोरलिस मेजर और मीडियल लिप पे लैटिसिमस डॉर्सी, ठीक है। तो ये एक्टिवली मसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो लैटिसिमस डॉर्सी और मेजर इट्स रिलेटेड पेक्टोरल रीजन। वो जब बैक और पेक्टोरल रीजन देखेंगे तो ये मसल फिर से आएंगी, ठीक है। देन नाउ सप्लाई सबस्कैपुलरी, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ये सबस्कैपुलर नर्व से होता है। देन सबस्कैपुलरिस, ये भी सबस्कैपुलर नर्व से होती है। देन सिर्फ एक ही वेरिएशन यहाँ पे है टेरेस माइनर का, जहाँ पे एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है, बाकी जो पूरी नर्व्स है इट्स रिलेटेड विथ सबस्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो ये भी पोस्टीरियर ये जो ब्रैकियल प्लेक्सस है उसकी ब्रांचेस होती है, सेपरेट ब्रांच है थर्ड, ये जो वही के स्पेसिफिक मसल्स को सप्लाई करती है। देन एक्शन सुप्रास्पाइनेटस, the supraspinatus indicate the abduction of the arm, it carries up to 15 degree, means ये जो मूवमेंट है जब abduct करते हैं towards the body, तो ये मूवमेंट सुप्रास्पाइनेटस से होते हैं। लैटरल रोट द आर्म, मींस लैटरली जो मूव करते हैं आर्म को, तो इट्स रिलेटेड विद अगेन विद द सुप्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर, सेम एज spinatus. Then subscapularis, that is the medial rotator of the and the abductor of the arm. तो ये जो होता है मूवमेंट, इसमें शोल्डर जॉइंट 90 डिग्री एल्बो जॉइंट के साथ
एल्बो जॉइंट फ्लेक्स है। तो ये जो मूवमेंट है बेसिकली, ये मूवमेंट होने के बाद अभी जब हम इसको मीडियली रोटेट करते हैं या एक्सटर्नली रोटेट करते हैं, तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट शोल्डर जॉइंट से होती है, ना कि एल्बो जॉइंट से। ठीक है, ये जो मूवमेंट है, तो ये मीडियल रोटेटर और लैटरल रोटेटर इस मूवमेंट को बोलते हैं। ये अगेन पूरे मूवमेंट जब स्पेशली करेंगे जॉइंट के मूवमेंट, अगेन ये मसल्स वहां पे भी हम रिपीट करेंगे कि कौन सी मसल फिर से रिपीट हो रही है, तो ताकि जितनी रिपीट होंगी क्या करने में थोड़ा सा इजी जाएंगे, क्योंकि कोई भी आसन हम विदाउट मूवमेंट नहीं कर पाते। तो प्रॉपरली हर जॉइंट के कौन से मूवमेंट को क्या क्या नाम दिया गया है और बेसिकली वो कितने एंगल तक नॉर्मली होता है, ये पूरी चीजें पता होनी चाहिए जब हम कोई भी आसन करते हैं। तो नॉर्मल एंगल कितना है और हम इसको कितना तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जो रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं उनके जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये 100% बियॉन्ड द कैपेसिटी होती है। तो ये कैपेसिटी दिन ब दिन बढ़ती है। तो ऐसे नेट पे बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, बहुत सारे योगा प्रैक्टिशनर्स जो है, जैसे पश्चिमोत्तानासन भी जो हो गया, जो आराम से कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि पश्चिमोत्तानासन में थंब तक भी उनका हाथ नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि एक तो वर्टिबल कॉलम की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती और एब्डोमिनल फैट ज्यादा रहता है, इस दोनों के कारण भी। तो वो क्यों नहीं हो पाते वो भी हम एक एक करके देख सकते हैं। तो दिस इज मसल रिलेटेड विद द स्कैपुलर रीजन। देन rotator cuff, it's one of the important structure related with the shoulder joint, that is it protects the shoulder joint and let you move your arms over your head. It's especially important in sports like baseball, swimming and tennis, means जहां जहां पे हाथ सर के ऊपर जाता है ये मूवमेंट, वहां पे रोटेटर कफ की मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे बेसिकली स्पोर्ट्स कैरेक्टर स्पोर्ट्स ये मेंशन किए हैं किताबों में, क्योंकि बेसिकली योगा जब हम करते हैं तो ये टीयर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर रेगुलरली प्रैक्टिस रही तो, इसलिए यहाँ पे योगा प्रैक्टिशनर नहीं दिए है। पर हाँ, अगर हम बहुत कोई कर नहीं रहा और आज ही मेरे को सभी करना है, मैं सभी आसन ऊपर वाले कर लिए, जो ये कंडीशन में भी टीयर हो सकता है। अगेन ऐसे कंडीशन में एक आध बार जैसे ये करते हैं पर्वतासन, अगर पैर ऊपर ले लिए, थाई के पास चिपका दिया और कंडीशन में अगर हम ऊपर हाथ करके अगर गिर गए, ठीक है, तो गिरने के साथ ही फ्रैक्चर भी होता है अलॉन्ग विद दिस टीयर। ठीक है, तो फ्रैक्चर तो 100% हम ये कर सकते हैं नेल से और एक्सटर्नल फिक्सेस और इंटरनल फिक्सेस से जोड़ सकते हैं। तो टीयर के वक्त इसको इंटरनली हील स्टिचेस करनी पड़ती है। तो आजकल ये भी बहुत कॉमन चीज है जो रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट में हो जाती है, टीयर भी रिपेयर होते हैं, पर फिर इसका रिपेयर होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है जिस कारण मूवमेंट हैम्पर होती है। आपने बहुत बार फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट देखे होंगे जिनकी मूवमेंट कंधे से ऊपर भी नहीं जाती है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लिकेशन भी है डायबिटीज का। अगर बहुत सालों से आपको डायबिटीज है तो ये मूवमेंट नहीं होती। तो ऐसे वक्त ये मूवमेंट के वक्त वहां पे जो कैप्सूल होती है शोल्डर की वो फिक्सली अटैच होती है विद दिस रोटेटर कफ। ठीक है, मैंने जो बाकी के टेंडन से उस कारण वो कैप्सूल मूव नहीं होने देती उस मसल को, या सॉरी उस जॉइंट को। अगर मूव हो भी रहे होंगे तो ड्यू टू दैट इन्फ्लामेशन दे जस्ट एग्जैक्ट ट्रिमेंडस पेन ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। ठीक है, तो ये पेशेंट आपने बहुत कॉमनली देखे होंगे। ठीक है, देन rotator cuff made up of muscle tendons that keep a ball of an head of an upper limb in your shoulder socket. It also helps you raise and rotate your arm. These are the four muscles. Supraspinatus, it holds your humerus in the place and keeps your upper arm stable. Infraspinatus, main function, this is the main muscle that lets you rotate and extend your shoulder. Then teres minor, this is the smallest rotator muscle. Its main job to assist the rotation of the arm away from the body. Subscapularis holds the upper arm bone to shoulder blade, helps you rotate arm and hold its strength out and lower of it. बेसिकली ये जब मैंने ह्यूमरस भी पढ़ाया था तब भी बताया था कि ग्लिनोइड कैविटी जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म कर रहा है, मींस एक जगह पे सॉकेट है दूसरी जगह पे बॉल है। तो बेसिकली ह्यूमरस का हेड एज कंपेयर्ड विथ ग्लिनोइड कैविटी बड़ा होता है, इसलिए ये वहां पे फिक्स नहीं हो पाता एक्चुअल स्ट्रक्चर में, इसलिए उसके बाजू के जो स्ट्रक्चर्स है वो उसको डेप्थ प्रदान करते हैं। तो ये भी सेम चीज है, रोटेटर कफ उसको डेप्थ दे रहा है। अगेन एक मेन स्ट्रक्चर होता है दैट इज द ग्लिनोडल लैब्रम व्हिच इज द जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैची। तो ये भी उसको फिक्सेशन देता है, बट इट्स नॉट फॉर्मिंग द कफ, ये इंटरनली प्रेजेंट है विद इन द कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। तो यही चार मसल्स रोटेटर कफ में आते हैं।
इसलिए अगर कभी रोटेटर कफ की इंजरी वगैरह ये जो स्ट्रक्चर सुनाई दिए तो इट इज रिलेटेड विद दिस 4 muscles only, that is supraspinatus, infraspinatus, teres minor and subscapularis. And again all of these muscles just started with the scapula and ends at the upper end of the humerus. इतना भी याद रखा तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि ग्रेटर ट्यूबरकल पे, लेसर ट्यूबरकल और इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस पे इतना डीपली नहीं गए, तो भी इतनी जानकारी एट अराउंड होनी चाहिए कि इट जस्ट स्टार्ट विद द स्कैपुला and end at the upper border or upper surface or upper end of the humerus. Then this is the diagram. Basically ये spine है, so supraspinatus, infraspinatus, then teres minor. Then teres minor. Then next one is the arm. ये स्कैपुलर रीजन हो गया, ये आर्म है. आर्म इट इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. अभी आर्म के मसल्स हम देखेंगे, दैट इज आर्म के मसल हम देखेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. ठीक है, एंटीरियर इट्स आर्म डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स. Arms is divided into anterior and posterior compartment by the extension of deep fascia. Means यहाँ पे compartment है जो compartment fascia के वजह से हुए हैं. तो यहाँ पे जो fascia होता है उसकी वजह से ही सिर्फ compartment हुए हैं, और ये compartment फिर anatomically दो इसमें इसको divide किया है. Means anterior and posterior by the region, anterior one and the posterior one. अभी सबसे पहले ही दिन मैंने anatomical position body की बताई थी, जो palm होते हैं it's towards the anterior aspect. ठीक है, तो ये anterior हो गया, ये posterior हो गया. तो anterior is by the region 1 and again it's divided by its functioning. जो anterior compartment होता है it is related with the flexion of the joints related with the elbow, और जो posterior compartment होता है it's related with the extensor compartment. ठीक है, तो basically ये compartment जो होता है वो सेप्टा से होता है. तो यहाँ पे एक मेन सेप्टा होता है, बीच में जो दो कंपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर रहा है, तो दैट इज द medial and the lateral intramuscular septa. Then this septa provide additional surface for the attachment of the muscle. एक तो सिर्फ उसको कंपार्टमेंट डिवाइड कर रहा है, देन मसल एक फिक्स लाइन में बोन पे अटैच है, और वो एक दूसरे के साथ अटैच होने के कारण उसको फिक्स पोजीशन चाहिए, तो जो सेप्टा प्रेजेंट रहता है उसके बीच में उसको भी वो फिक्स अटैचमेंट देता है. देन द सेप्टा आर वेल डिफाइंड ओनली इन द लोअर हाफ ऑफ द आर्म where are attached to the medial and lateral border of the supracondylar ridges of the humerus. अभी ह्यूमरस का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, नीचे के साइड में ट्रोक्लियर और कैपिचुलम थे, उसके ऊपर एक शार्प मार्जिन्स थी ह्यूमरस में, दैट इज कॉल्ड एज अ सुप्राकॉन्डिलर रिज. ठीक है, जो ऊपर थे ह्यूमरस के वक्त, तो वो रिज में ये सेप्टा अटैच होता है जस्ट टू फॉर्म द डिमार्केटिंग पॉइंट. मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेप्टा हम जब डिसेक्ट करते हैं बॉडी, तो ये सेप्टा दिखता भी नहीं, क्योंकि फैशिया और ये सेप्टा अलग अलग होता है. हाँ, जब हम थाई डिसेक्ट करते हैं तो थाई के सेप्टा क्लियरली दिखते हैं, क्योंकि वो फाइब्रस होते हैं और फिक्सली अटैच होते हैं 3 कंपार्टमेंट में थाई को डिवाइड करने के लिए. लेकिन जब बाइसेप बेसिकली ब्रैकियम हम डिसेक्ट करते हैं तो ये सेप्टा बहुत थिन होते हैं एज कम्पेयर्ड विद द थाई. सो फैशिया के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर प्रॉपर डिसेक्शन किया गया तो ही ये हम देख पाते हैं. देन 2 एडिशनल सेप्टास आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट, ट्रांसवर्स सेप्टा एंड एंटेरोपोस्टीरियर सेप्टा. तो ये जस्ट फॉर ट्रांसवर्स सेप्टा जो ब्रैकियलिस मसल होती है सबसे नीचे, उसके ऊपर ब्रैकियलिस होती है, और कोरेकोब्रैकियलिस जो होती है वो जो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैका होते हैं उसी को लेके वो अटैच होती है. तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ एन आर्म सिर्फ 3 मसल्स है, बाइसेप, कोरेकोब्रैकियलिस, बाइसेप ब्रैका एंड ब्रैकियलिस. नाउ द कोरेकोब्रैकियलिस एज पर द नेम coraco, it is related with the coracoid process of the scapula along with the short head of bicep brachii. ठीक है, बाइसेप ब्रैका 2 हेड है, एक लॉन्ग हेड एक शॉर्ट हेड. तो कोरेकोइड प्रोसेस पे 2 ही मसल्स के इंसर्शन ओरिजिन हमने देखे थे, एक कोरेकोब्रैकियलिस था, एक शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैका था. तो वो वहां से निकली कहां तक गई है, तो इट्स अप टू द मीडियल 5 सेंटीमीटर ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है, कि मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस के 5 सेंटीमीटर तक वो गई है. Then bicep brachii, it has 2 ends, heads and origin. One is
one end or short head it is related with the coracobrachialis. Long head arises with the supraglenoidal tubercle. जो glenoidal cavity होती है, दो ट्यूबरकल है, एक सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल, एक इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल. सुप्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल में बाइसेप ब्रैकाई का लॉन्ग हेड ओरिजिनेट होता है और इंफ्राग्लिनोइडल ट्यूबरकल में ट्राइसेप ब्रैकाई का लॉन्ग हेड ओरिजिनेट होता है जो बैक की मसल है. ठीक है, इसका इंसर्शन पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर रफ पार्ट में बाइसेप ब्रैकाई का इंसर्शन है. दूसरी टेंडन जो है एक्सटेंशन कॉल्ड एज अ बाइसेप occipital aponeurosis is much with the fascia of the forearm. ठीक है, यहाँ पे क्यूबाइडल फोसा होता है, इसके सुपरफिशियल एरिया में वो इंसर्ट होती है बाय फॉर्मिंग द एपोनेरोसिस अलोंग विद द टेंडन. इसलिए जिस दिन हमने लैंडमार्क देखा था तब मैंने बोला था कि यहाँ पे आप जस्ट थंब रखिए, इसको फ्लेक्स कीजिए तो आपको एक टेंडन प्रोमिनेंटली दिखेंगी, दैट इज द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रैकाई. ठीक है, ये टेंडन आपको ये फील करके देख सकते हो खुद, क्योंकि जब हम बेसिकली जब ब्लड निकालते हैं क्यूबाइडल फोसा से तो ये टेंडन अवॉइड करनी पड़ती है. ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे पाल्पेशन करके आराम से हम ब्लड निकाल सकते हैं, और ये टेंडन यहाँ पे पाल्पेट होती है एज ए एनाटॉमिकल लैंडमार्क करके भी. तो यहाँ पे दो इसमें लॉन्ग हेड इंसर्ट होता है, एक तो एपोनेरोसिस फॉर्म करके और दूसरा टेंडन इंसर्शन देके. तो एपोनेरोसिस मीन्स इट्स कॉल्ड एज अ फ्लैट टेंडन. ठीक है, टेंडन मीन्स हमने ये देखा कि सीधा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एपोनेरोसिस मीन्स वो जो थ्रेड होता है वो आखिरी में जाके फ्लैट हो जाता है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एपोनेरोसिस. तो दैट इज द बाइसेपिटल एपोनेरोसिस. देन ब्रैकियालिस, सबसे ऊपर बाइसेप ब्रैका होती है, उसको मिडल इंसिजन लो, उसको सेपरेट करो, फिर आपको ब्रैकियालिस दिखेंगे. तो इट इज द लोअर हाफ ऑफ द फ्रंट ऑफ द ह्यूमरस इंक्लूडिंग बोथ थ्रू लैटरल एस्पेक्ट. पूरा ह्यूमरस नीचे के साइड में सिर्फ ब्रैकियलिस से ही ओरिजिनेट होता है. देन इट्स जस्ट इंसर्टेड ऑन द अल्नर ट्यूबरोसिटी. देन nerves, that is the musculocutaneous nerve and the radial nerve. ठीक है, musculocutaneous nerve सबसे बड़ी ब्रांच है लैटरल कॉर्ड की, बड़ी इन द सेंस आर्म की पूरी मसल्स को musculocutaneous सप्लाई करती है. देन द रेडियल एंड द अल्नर नर्व्स फोरआर्म से रिलेटेड होती है. मस्कुलोक्यूटेनस अगेन ब्रैकियोडेलिस के वक्त भी आपको दिखाई जाएंगी, जब फोरआर्म की मसल्स हम देखेंगे तो और वो डिस्कस कर पाएंगे. ठीक है, देन जैसा मैंने बोला कि आगे वाली जो मसल्स है वो पूरा फ्लेक्शन का काम करते हैं. तो फ्लेक्स द फोरआर्म एट द एल्बो, देन स्ट्रॉन्गर बाइसेप ब्रैकाई सुपिनेटर ऑफ द फोरआर्म, देन फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, शॉर्ट हेड, फ्लेक्शन. ये पूरे मसल्स आप जितने भी एक्शंस इसको देखोगे तो ये पोर्शन फ्लेक्शन ही आपको दिखाएगा. Again brachialis, flexion of the forearm. So main जो function है that is related with the flexion of the forearm means elbow and related with the structure. ठीक है, जब back के portion आते हैं that is the with an extension. The last muscle that is the tricep of an related with the arm that is the tricep. It having origin, सबसे बड़ी muscle है tricep. As per the name tricep means तीन head है. First one long head, lateral head and the medial head. Long head it's originate for the infraglenoidal tubercle of the scapula. lateral और medial ये दोनों के origin ह्यूमरस के ही शाफ्ट पे है. दोनों के बीच में एक गैप होती है that is called as a radial groove, जहां से radial nerve पास होती है. then insertion, long and lateral head converge inserted into the posterior part of the olecranon fossa. नीचे अभी हमने देखा कि posterior part of olecranon fossa में triangular surface triangular mark में वो insert होती है. then medial head is inserted partly into the superficial tendon, partly into the olecranon fossa. तो बेसिकली पूरे के पूरे इंसर्शंस ओलेक्रानल प्रोसेस पे पोस्टीरियरली है. ये जो पूरी मसल है पोस्टीरियरली जो हमें लगती है मिडल साइड में. ठीक है, अपर साइड में दिस मसल इज द डेल्टॉइड मसल. ठीक है, तो ये मोस्टली स्कैपुलर रीजन में आती है और हमने स्कैपुला से रिलेटेड नहीं लिया क्योंकि जब स्पेशली नेक और शोल्डर का रीजन लेंगे तब डेल्टॉइड का सबसे बड़ा काम है क्योंकि इसका अटैचमेंट हमने क्लेविकल में भी देखा था. ठीक है, तो डेल्टॉइड यहाँ तक जो ऊपर तक जो मसल दिखेंगी जहाँ पे आपने वैक्सीन लिया होगा दैट इज द डेल्टॉइड, और जस्ट बिलो बिहाइंड द डेल्टॉइड दिस इज डेल्टॉइड, दिस इज बाइसेप ब्रैकाई. बाइसेप ब्रैकाई को हमने रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है बाइसेप कट किया. कट करने के बाद जो नीचे वाली मसल है दैट इज रिलेटेड विद द ब्रैकियालिस. ठीक है, और आगे दिखेंगी यहाँ पे ये हमने लैटरल एस्पेक्ट लिया, मुझे ये वाला ये डेल्टॉइड मसल हो गई, उसके आगे ये वाली
बाइसेप ब्रैका ये एंटीरियरली है, उसके जस्ट पीछे ब्रैकियालिस मींस आधे तक डेल्टोइड है, उसके नीचे यहाँ पे ब्रैकियालिस है और उसके पीछे यहाँ पे ट्राइसेप है। ये तीनों मसल्स है। अब यहाँ पे कोरेकोब्रैकियालिस आपको नहीं दिख रही क्योंकि कोरेकोब्रैकियालिस ये चिपक के होती है जो टेंडॉन्स होते हैं बाइसेप ब्रैका को उसको, ठीक है। दो टेंडॉन्स होते हैं, उसका शॉर्ट हेड टेंडॉन्स मेडियली रहता है, लॉन्ग हेड लैटरली रहता है। फिर लॉन्ग हेड बाइसेपिटल ब्रूस से अंदर जाता है, कैप्सूल में लैब्रम फॉर्म करता है और लैब्रम फॉर्म करने के बाद ऊपर जाता है टू द इंफ्राग्लोनाइडल ट्यूबरकल जहाँ पे वो इंसर्ट होता है, ठीक है। तो ये सॉरी ओरिजिनेट होता है वहां से, फिर लैब्रम फॉर्म करके नीचे आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मसल्स रिलेटेड विद द आर्म and the bones related with the forearm. In the next lecture we just go with the muscles related with the forearm. This is all about today's lecture. Yes. Any questions? Anybody, please? कोई प्रश्न? एक्चुअली बहुत सारे मसल्स के नाम है, थोड़े से रिपीट हो रहे हैं। माइट भी ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले बताया फिर अभी याद नहीं आ रहे होंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। हम बहुत बार मसल्स रिपीट करने की कोशिश करेंगे मेरी ओर से, पर थोड़ा सा एक ओवरलुक अगर रहा, मैं ये पॉसिबल नहीं है बेसिकली पूरे नाम एक ही दिन में याद होना, 2 ही दिन में याद होना, पर एटलीस्ट हमें इतना याद होना चाहिए कि कौन सी मसल कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। एट द स्टार्ट मैं ये बता रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। बेसिकली इतना पूरा लर्न होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट जब कभी नाम आया एटलीस्ट सबस्कैपुलरिस तो हमें इतना पता होना चाहिए कि वो स्कैपुला से ह्यूमरस के हेड तक गई है यानी अपर सेगमेंट तक गई है। यानी ये पूरा पढ़ने का एटलीस्ट उतना भी पता रहा, क्योंकि यही मूवमेंट्स में फिर से रिपीट होंगे। ये अपर मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, मीडियल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट, तो ये मसल फिर से आएंगी तो फिर से एक बार रिपीट होंगी, ताकि जितनी रिपीटेशन हम कर पाए,